Okay, I'll start. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I was on mute. Hope I'm audible now. Yeah. Sorry, I'm so sorry. So again on the front page, they are talking about FMCG. So I have two, three news I will share, how they are interlinked. So first thing again on the FMCG that this quick commerce segment is improving, and to help Kirana stores, what FMCG company is doing is that they are coming up with a 50 to 100 rupees pack. See, now they are priced at 50 to 100. Uh, they want it, they want on the quick commerce, they will only keep 50 to 100 रुपीस, बट किराना के स्टोर के पास वो लोग 10 और 15 रुपए के पैक्स रखेंगे, सो दैट वो क्लैश ना हो। मतलब अगर तुमको 10 रुपए का पैक लेना है तो तुम किराना स्टोर के पास जाओगे, और क्विक कॉमर्स से लेना है तो वो 50 रुपीज का ही मिनिमम पैक होगा। तो अदानी, अदानी विल्मर, सी हाई वैल्यू परचेजेस, अदानी विल्मर, हिंदुस्तान लीवर, ITC, they are all coming up with a product which will cater to the e-commerce segment, and kirana store के लिए अलग product segment रखा है, just because to decrease that discrepancy between kirana stores and quick commerce. So quick commerce, what they are saying is that if you see this, they have doubled it to 35 to 40%. I don't know whether it is visible. This is up to 35 to, you can see my cursor. It is 35 to 40% that the quick commerce segment has almost double in 2024. So this is a quick moving. People are, kirana stores are surviving for this. काफी टाइम FMCG में ये सब चीजें आ रही है बार 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 बार. बट नाउ व्हाट आर दे डूइंग इज, अभी ये हाई वैल्यू परचेज से क्या होगा, प्रोबेबली ना अगर तुमको 10 रुपए की चीज लेना है तो तुमको घर पे बैठ के नहीं मिलेगी, तुमको 50 रुपए की लेनी पड़ेगी। एंड ये लोग बोलते हैं, एक इंस्टीट्यूशन सर्वे किया है, वो बोलते हैं कि 82% ऑफ द बायर सर्वे किया है, उसमें से हार्डली 5 लोग, 5% had stopped buying from neighborhood outlets। तो 82% लोग बोलते हैं कि हमने बाहर जाना बंद, सॉरी 5% लोग बोलते हैं कि हमने बाहर जाना बंद कर दिया है। तो करेक्ट, इवन आई कैन एग्री दैट काफी चीजें तुमको मिल जाती है ऑनलाइन, तो तुम नीचे नहीं जाते हो। एंड ये सब चीजें अभी खासकर अर्बन में हो रही है, रूरल में आई डोंट नो व्हाट इज द सिनेरियो। बट जैसे 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 apps आ रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हो लोग, तो प्रोबेबली रूरल में भी ये सब चालू होगा एट अ ग्रेटर स्पेस। So again, a data key, 20 to 35% as quick commerce sales have almost doubled to 25-30%. 30% brand mix, तो ये new age DTC brands on fast delivery platforms, delivering differently. Within e-commerce, the delivery has made a strong interest, contributing 30% of the overall Dabur sales in beverages. 10% of the ice cream sold by HUL are from e-commerce. अभी देखो, they have talked about the grocery market in India. 40 to 50 top cities constitute $250 billion of grocery market. मतलब ये होगा हमारा approximate the market size. This is the big how the FMCG market is. It is showing a 75% growth in year-on-year quick commerce. So, जैसे सब डेटा है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि whenever you talk about news, you should have some data to talk about. सिर्फ न्यूज देना doesn't make sense. तो जो joining it for the first time, सिर्फ हम बात कर रहे हैं। इफ यू सी, जो भी मैं न्यूज बोल रहा हूँ, इट इज रिलेटेड टू अ कंपनी। सेक्टर की बात की है पहले FMCG, बट उसके बाद मैंने कंपनीज की बात की, अदानी, विल्मर, HUL, ITC। ये तीनों की लॉन्चेस है ना, लॉन्चेस डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स स्पेसिफिकली फॉर क्विक कॉमर्स। So these things are going on in the sector, and when you give news, you should also be कि कोई कंपनी की न्यूज होनी चाहिए जो लिस्टेड कंपनी है, कोई डेटा पॉइंट जिसमें होना चाहिए जहाँ पे हमके मॉडल्स में यूज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी ये दिस विल बी यूज इन अ मॉडल कि 30 ग्रोथ इज 35 to 40%, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, मतलब 100% से ग्रो हो रहा है, तो ये हमको एक मिल गया।
हमने उस दिन देखा था HUL के कॉन्फ्रेंस पर भी ही says कि उनका 7% ही सिर्फ क्विक कॉमर्स से आ रहा है। तो नाउ अज्यूमिंग कि वो 7% विल बी डबल्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ years. So this is what I data I got it over here that I can use in financial model. प्लस मार्केट साइज मिल गया। तुम बोल रहे हो ग्रोसरी मार्केट कितना बड़ा है, चलो टॉप 50 सिटीज का ग्रोसरी मार्केट इतना बड़ा है। अच्छा, और एक चीज मुझे बोलनी थी रिलेटेड टू दिस, एक न्यूज़पेपर में आता वापस ना, इट इज कमिंग टू बिजनेस लाइन। तो बिजनेस लाइन में तो एक दिन यहाँ पे था, आई गेस इट वाज ओवर हियर। स्ट्रॉन्ग फेस्टिव डिमांड्स लिफ्ट रिलायंस रिटेल। अभी ने इसने क्या दिया है, दे हैव गिवन अबाउट द रिलायंस रिटेल, देन रिलायंस रिटेल इज नॉट सेपरेटली लिस्टेड। बट यहाँ से मुझे क्या समझ रहा है कि ओवरऑल रिटेल सेगमेंट इज ग्रोइंग। मतलब if you see over here, Reliance Retail has opened 779 stores, taking the company's total store discount to a total store को 19,000 stores. And अगर तुम उल्टा कैलकुलेट करो, कब सेल्स हुआ है अप्रोक्सीमेट 79,000 करोड़, उसमें से 19,000 एक स्टोर से आता है। सो इफ यू मल्टीप्लाई ना, इफ यू कैलकुलेट यूज करते हो 79,000 अप्रोक्सीमेट डिवाइड बाय 19,000 स्टोर, तो अप्रोक्सीमेट 4 करोड़ का सेल्स एक स्टोर से हो रहा है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट नंबर। मतलब रिलायंस के एक स्टोर से स्कोर इज अप्रोक्सीमेट 4 करोड़। तो अगर रिलायंस के इससे हो रहा है तो उसमें ना और देने दिया है, और एक डेटा था रिलायंस, सॉरी इसमें नहीं था कोई, और एक न्यूज में वो लोग ने रिलायंस रिटेल का ये भी दिया था कि कितने स्क्वायर मीटर का उनका एरिया है। तो वो एरिया से भी हम समझ सकते हैं कि अरे एक मिलीमीटर एक स्क्वायर फुट में हाउ मच इज द सेल्स पर स्क्वायर फुट। This they are saying that the consumer electric is at 12% growth, digital economics 8%, 18%, Reliance retail, sorry, in grocery business, business to consumer grew 37% with general merchandise and value appreciation, 20% प्रीमियम पर्सनल केयर ब्यूटी केयर। अभी बताओ कि रिलायंस की खुद के तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है नहीं, बेचेंगे तो HUL और इसके, HUL और तुम्हारे मैरिको, तो ये लोग ग्रो ब्यूटी पर्सनल केयर स्पेसिफिकली HUL, पर्सनल केयर एंड ब्यूटी, काफी मेजर पोर्शन वहां से आता है उसका। Sir, तुम देख रहे हो अभी Reliance, मार्केट फॉल में क्या हुआ? Reliance has acquired a D2C brand, Insight Cosmetics. अच्छा ओके, हाँ रिलायंस एक्वायर करेक्ट, पर वो प्रीमियम ब्रांड था ना, इट वाज नॉट अ नॉर्मल ब्रांड। आई थिंक वो प्रीमियम कैटेगरी में था वो लोग ने जो एक्वायर किया है। ईशा अंबानी, हाँ हाँ, ईशा अंबानी ने कितना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। No, sir, it's not a premium brand. It's a very affordable one. अच्छा हाँ, कौन Insight क्या नाम है, Cosmetics. क्या नाम है? Insight Cosmetics. अच्छा ओके फाइन, ओके। सो सो मेरा कहने का मतलब था कि हाँ, so दिस रिलायंस रिटेल इज आल्सो, ये ग्रोसरी बिजनेस की बात करें, बिजनेस टू कंज्यूमर, वैल्यू अपैरल्स, जनरल मर्चेंडाइज probably होगा, प्रीमियम ही हैव रिटन प्रीमियम पर्सनल केयर, तो मैं आई थॉट दैट इज द ब्रांड। सो दिस द माय क्वेश्चन इज कि ये सब ब्रांड्स है, इस पे तुम्हारे HUL भी मेजर पार्ट कम्स फ्रॉम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो अगर ये इंडस्ट्री बढ़ रहा है, इसका मतलब द बिग प्लेयर्स विल आल्सो मेक मनी, या वो भी ग्रो हो रहा है। इट हैज रीच्ड 16%, ठीक है HUL का 16 नहीं होगा, HUL का 6 होगा, पर हमको ये समझ रहा है कि HUL इज ग्रोइंग आउट ऑफ इट। तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज HUL डूइंग टू कम्पीट विद रिलायंस। ये सब तुमको कॉन्फ्रेंस कॉल पे उनको पूछना होता है डायरेक्टर्स को कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, रिलायंस का ये सब हो रहा है। तो रिलायंस लिस्टेड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिसर्च नहीं करना होता है। इट इज ऑल्सो कॉम्पिटिटर फॉर रिलायंस। उसने 779 स्टोर्स खोले, तुमने कितना स्टोर्स खोला है अभी? या फिर रिलायंस रिटेल के साथ यू टॉक अबाउट शॉपर स्टॉप्स, जो हम बात कर रहे हैं, शॉपर स्टॉप्स ने कितने स्टोर्स खोले, उसके बाद रेमंड ने कितने स्टोर्स खोले, व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे वैल्यू अपैरल की भी बात की है, इफ दिस इज एक्सपांडिंग व्हाई आर यू नॉट एबल टू एक्सपांड। एंड जब मार्केट बढ़ता है, देखो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट मार्केट इंक्रीजिंग, ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ रिलायंस ही बढ़ेगा, सब लोग बढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि मारुति बढ़ा तो सिर्फ मारुति की गाड़ी लेते हैं, लोग टाटा की भी गाड़ी लेते हैं, होंडा की भी लेती है, मर्सिडीज भी लेती है। तो ये तुमको देखना है कि विच इज द बेटर poised company in this sector. So that is why the sector research is so much important. तो तुमको रिलायंस के साथ साथ तुमको HUL भी देखना है, मैरिको भी देखना है, डाबर भी देखना है। फिर अब ये वैल्यू, अगर रिलायंस
वैल्यू अपैरल की बात की तो तुम्हारे एफएम के तुम्हारे रिलायंस, सॉरी, रेमंड आ गए, अरविंद फैशन आ गया, को फैशन आ गया। तो इफ यू हैव दोस ऑल डेटा, ये सब तुम इंटरव्यू में जाके बोलते हो, तो इट मेक्स अ डिफरेंट एफर्ट। कुछ अलग समझता है कि नहीं, ये लड़के ने मुझे कुछ अलग बोला, ये लड़की ने मुझे कुछ अलग बताया जो लोग नॉर्मल लोग बताते नहीं है। और इसका मतलब ये न्यूज रीड कर रही है। आज बहुत सारा डेटा है। ये सुजुकी का मुझे वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। इससे ज्यादा ना ईटी में भी है। ईटी में मेरे को ज्यादा डेटा मिला कंपेयर टू बिजनेस स्टैंडर्ड। शो यू दैट। अच्छा, एनीवन, टोटल इंडिया में ईवी कार्स कितने बिके ये ईयर में? किसी को न्यूज पढ़ने के पहले पता है तो टोटल कितने कार्स बिके इंडिया में? एनी आइडिया? हम ईवी ईवी करते हैं, टोटल गाड़ी इंडिया में कितने बिकती है? एनीवन? सर अगर इस ईयर नहीं का पता, तो नहीं पता, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का पता है। अराउंड कितना 2 था? मिलियन पिछले साल का। 2 मिलियन मतलब 20 लाख हो गए। नहीं सर, गाड़ी थी अराउंड 90,000 की अराउंड थी। तो इस साल यू गॉट अ फिगर ओवर ईयर विच सेज 82,000। नहीं, 1,07,000 है यहाँ पे। लोग ने जस्ट फिगर दिया है। अच्छा, तो नहीं वेयर वो इज द फिगर? सर इकोनॉमिक वो टाइम्स का तो वो था कि इलेक्ट्रिक कार सेल्स अप 20% इन 2024। हाँ, अच्छा, वो 82,000, एटी टू फाइनेंशियल ईयर थाउजेंड होगा से अप ये। है। ओके, एटी टू ये थाउजेंड से कैलेंडर अप ईयर है। है। ये कैलेंडर ओके, ईयर है, हाँ। करेक्ट करेक्ट दिस इज करेक्ट। कैलेंडर ईयर। तो यस, इंडियन इलेक्ट्रिक कार सेल्स ग्रू बाय अबाउट वन फिफ्थ। वन फिफ्थ वही बराबर है 20%। अभी देखो ट्वेंटी इन्होंने थाउजेंड कैसे लिखा है, अ फिफ्थ। तो 20% की ग्रोथ है। दैट हैज गॉन टू 1,07,000 व्हीकल्स पर ईयर। सो दिस इज द डेटा। जब पता होना चाहिए, हम इतना ईवी ईवी करते थे सर, ईवी में ग्रोथ है। तो कितने में ग्रो हो रहा है? ईवी इज ग्रोइंग एट 20% इंडस्ट्री ग्रोथ। एंड करंटली देयर आर 1,07,000 व्हीकल्स विच आर सोल्ड दिस ईयर। करेक्टली लास्ट ईयर 80,000 के आसपास थे, जो अभी सर 1,07,000 हो गए। फिर now what is Maruti doing over here? Maruti says that we will aims to export EVs from here। तो वो इंडिया में बना रहे हैं, प्लस उनको एक्सपोर्ट भी करना है। एक्सपोर्ट वो लोग यूरोप, जापान, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, एशियन कंट्रीज, so they are planning to fully leverage the advantage to supply vehicles to Europe। they want to again aim the market share। तो यहाँ पे ना आई डोंट नो व्हाट, एक अच्छा, एक गुड लाइन मुझे समझी मुझे। मारुति हैज लाइंड अप सेवरल प्रोडक्ट इन द फास्ट ग्रोइंग एसयूवी सेगमेंट टू रीगेन द मार्केट शेयर। आई डोंट नो कौन से लाइन अप किए। फ्रॉन्क्स ही मुझे पता है, बट फ्रॉन्क्स एक एसयूवी नहीं है। इट इज अ मिड सेगमेंट कार। एसयूवी या सेडान के बीच में आती है। तो सब फ्रॉन्क्स के बारे में भी कोई है क्या? तुमको सब पता है कि मारुति कौन सा कॉम्पैक्ट बोल रहा है? सॉरी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है सर, कॉम्पैक्ट फ्रॉन्क्स। एसयूवी आती है, हाँ, बट फ्यूल फ्लेज नहीं आते। तो ये यस। मुझे पता नहीं ये लोग ने क्या लाइंड अप किया है। तो आई एम वेरी क्यूरियस टू फाइंड कि ये लोग ने क्या लाइंड अप किया है ये। Just to add this thing also, so Maruti also said that key to increase this EV range, they will plan to reduce the vehicle curbs weight. So the lighter vehicle will offer better range. बेटर रेंज, हाँ, ओके। Yeah. And it will also plan to launch 3 entry-level EVs in coming 2 years. Although हाँ, models are not shared which will, but all will be come in 2 years time as thing. हैचबैक बोले। टू बी श्योर दे Yes, विल sir. मेक फॉर ईवी, टाटा टियागो ईवी और सिट्रोन ईवी को कंपीट करने दे विल स्टार्ट। Yes. प्लस यहाँ पे दे आर सेइंग दे विल डबल द एक्सपोर्ट्स टू 7,50,000, जो करंटली इट इज एट 3,26,000। तो और एक डेटा मिल गया मुझे मारुति के मॉडल में डालने को। अगर 3,26,000 है तो मुझे पता है फोरकास्ट करते वक्त, मतलब एक्सपोर्ट 8 लाख का होगा, अभी इतना है। तो यू कैन टेक अबाउट CAGR कि हर साल कितना ग्रोथ होगा। तो CAGR मैंने बोला एक्सेल पे कर सकते हैं तुम, RRI फॉर्मूला डाल के, कि 3,26,000 है और 8 लाख को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो 24 से 30, 6 साल में अगर 3 लाख से 8 लाख जाएगा तो कितना % ग्रोथ हमको मिलेगा? यू कैन इजीली डू इट फॉर। ये देखो, Maruti said that India made Fronx as compact SUV has been very well received in Japan with orders, outstanding orders of 15,000 units। हाँ, जब भी मारुति का कभी न्यूज आता है, मारुति ऑलवेज प्लान समथिंग बिग। एंड आई एम नाउ, पहले तो बुलिश ही था मैं मारुति पे कि चलो काफी टाइम से स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, ये नहीं किया है, बट अभी गिर भी नहीं रहा है वो। वैल्यूएशंस ठीक है, आर कंपैरेटिवली, वो तो अलग पार्ट हो गया वैल्यूएशन का, बट जो भी मुझे समझ रहा है आसपास जो चल रहा है, मारुति इज पॉइज्ड फॉर अ सेकेंडरी ग्रोथ, जहाँ पे एंट्री लेवल कार का बीच में ग्रोथ बढ़ गया था अभी। हाँ, वो कहाँ पे लिखा है? एंट्री लेवल कार का वो बढ़ गया, वो लिखा है तुम्हारे इसमें।
मारुति करंट मार्केट शेयर, ये भी मुझे मिल गया डेटा, करंट मार्केट शेयर 40% है, उनको 50% करना है। अगेंस्ट 45.85 था, अभी 40.6 हो गया। मार्केट शेयर FY20 में उसका मार्केट शेयर 51% था। ये और एक डेटा मुझे मिल गया। अभी वहां पे ना उन्होंने वहां पे एंट्री लेवल्स की बात की थी। एंट्री लेवल्स कंट्रीब्यूट नाउ 50% ऑफ द मारुति सेल्स, 38% सॉरी। सर एक्चुअली मैंने आपको कल व्हाट्सएप मैसेज शेयर करा था, उसमें मैंने लिख रखा है सारा एक्चुअली लिखा था? डेटा। अच्छा, यस सर। ओके, ये भी कहाँ पे तो लिखा था। तो अभी मेजरली तो मेरा फोकस होगा कि एक्सपोर्ट कितना बढ़ा रहा है ये, एंड अगर वो लास्ट में बोल रहा है कि इतना अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वहां से उसका एक नया मार्केट खुला। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट फोरकास्टिंग, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फोरकास्टिंग। एक तो इंडस्ट्री ग्रोथ है, दूसरा अगर तुमको कंपनी को ग्रो होना है तो यू हैव टू डू समथिंग एल्स, गो टू डिफरेंट मार्केट्स, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करो। तो जितना भी मैंने पढ़ा है एज ए एनालिस्ट ना, कि बेसिक ग्रोथ रेट कैसे होता है, क्योंकि मारुति ऑलरेडी 50% मार्केट शेयर, उसके ऊपर तो बढ़ने वाला है नहीं, और अभी 40 पे। दे आर ट्राइंग इट टू रीच टू 50। व्हाई? हाउ? बाय लॉन्चिंग न्यू मॉडल्स। उसके बाद दे आर कमिंग अप इनटू ईवीज, अ सेपरेट बिजनेस मॉडल। दे आर एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स। दूसरा और एक, मतलब देयर आर टू रेवेन्यूज फॉर मारुति टू एक्सपांड। मतलब उसका जो ग्रोथ रेट है इंडिया में तो है ही, उसके बाद नाउ दे आर फाइंडिंग न्यू वेज टू एक्सपांड। एंड इतने सारे कंपनीज की बात की वो लोग ने कि दे आर मेकिंग इंडिया द हब। तो थिंक ना, दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। अभी वी आर इन 2025, 2030 तक, we just have to see what is the price of Maruti। हर रोज we have to track क्या हो रहा है। ऐसे अभी हम जो 5 साल का डेटा मिल गया है, मतलब मेरे फाइनेंशियल मॉडल के लिए आई हैव गॉट अ 5 years डेटा टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है। और ये फिर मार्केट शेयर, और ये लोग ने जो बोला है ईवी इतना होगा ना, डबल होगा, सच में हो रहा है क्या? क्वार्टर ऑन क्वार्टर विल लुक एट द नंबर्स। वो बोल रहे हैं जो CAGR जो ग्रोथ आया, वो ग्रोथ से ग्रो हो रहा है क्या? इज इट राइट? तो दिस इज वेयर यू स्टार्ट योर रिसर्च। आज अगर मेरे को मार्केट ट्रैक करना है, तो ये सब चीजें मुझे आज से पता है 5 साल में क्या होने वाला है। ओके, सो दिस वाज ऑल, मतलब काफी एक्साइटेड था मैं आज न्यूज़ बात है इसके लिए। मॉर्निंग कॉल भी आई वाज क्वाइट एक्साइटेड टू टेल यू कि ना क्या क्या हो रहा है मार्केट में, एंड जो हम बात कर रहे हैं इतने टाइम से वही दिख रहा है। अपैरल का ग्रोथ हुआ, हाँ अपैरल का इधर था। और कैंपा कोला की बात की थी रिलायंस ने, इट वाज कॉस्टिंग, बोल रहे कि इट विल बी 1,000 करोड़ मार्केट बाय बाय 2030। कैंपा कोला का जो है ना प्रोडक्ट, बेवरेजेस, तो बेवरेजेस की बात की तो बेवरेजेस में वरुण बेवरेजेस द वन हु हैज लीडर इन इंडिया। वो भी एक आ गया कि ना, मेरे को समझ गया कि रिलायंस बात है ये रहा। यहाँ पे उसने कैंपा कोला की बात की थी, हाँ ये रहा। रिलायंस कंज्यूमर कैन, कैंपा एंड इंडिपेंडेंस आर प्रोजेक्टेड टू क्रॉस 1,000 करोड़ ईच इन 2025। so this is समथिंग टू लुक एट, कि ये बिजनेस बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस बढ़ रहा है। तो रिलायंस रिटेल इज राइजिंग, फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन, नो स्पैनिंग फ्रॉम ग्रोसरीज, कंज्यूमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल, सब कुछ बढ़ रहा है। इंक्रीज कस्टमर्स ड्यूरिंग प्रोडक्ट लॉन्चेस, प्रमोशन, ये सब चीजें हमारे आजू बाजू हो रही है, बट हमको इसके बारे में पता नहीं क्या हो रहा है। एंड वी आर ट्रैकिंग समथिंग विच वी डोंट नो। सर पावर सेक्टर ट्रैक करेंगे, ऑयल सेक्टर ट्रैक करेंगे, नो कोई रैंडम सेक्टर ट्रैक करेंगे, इसका कुछ पता ही नहीं है। ये सब चीज जहाँ पे तुम भी खर्चा कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुमने कोई फेस्टिवल में कोई कपड़ा नहीं खरीदा। प्रॉब्ली अगर तुमने बिग परचेस टिकट किया तो तुमने गाड़ी भी खरीदी होगी, बाइक भी खरीदी होगी, तुमने नहीं तो किसी फैमिली ने, फ्रेंड ने। ऐसा हुआ है, हमको दिख रहा है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। और इसका भी आया एक सीवी का भी आया एक डेटा, बट दैट इज फाइन, स्क्रैपेज पॉलिसी का सेम है। But this was from my side. Okay, so now I think Abhishek wants to talk about the metro results. Abhishek, you can go ahead. Yeah, I'll be very quick. So Metro reported the result yesterday. So consolidated quarter 3 year on year consolidated revenue is up 10.6%. Which वो लोग ने बोला कि they have attributed to festive and wedding season, which is because क्योंकि उनका H1 FY25 was muted, and EBITDA is up 13%. EBITDA margin is around 32% compared Y on Y 31.4 था. Now PAT में they have seen 3.7% का degrowth. Now this is actually वो PAT का degrowth is attributed to 25 crores का reconciliation reassessment tax balance हुआ है सर। तो वो आइडियली क्या हुआ है, बिकॉज मेट्रो ब्रांड्स का फिला के साथ भी काफी एग्रीमेंट था,
to sell shoes. But there has been a recent regulation by the board of whatever, वो एक BIS करके एक बोर्ड होता है इनका. तो वो BIS बोर्ड ने, हाँ, Bureau of Indian Standards for Footwear. So this board has said that they have given ultimatum to all footwear companies that if you have any stock as on 31st July 2024 has to be cleared by 31st July 2026. Now Metro Brands has a huge stock of Fila, so उन्होंने पूरा स्टॉक लिक्विडेट कर दिया अभी ये क्वार्टर में. ठीक है, तो ऑलमोस्ट कर दिया है. तो दे आर सेइंग कि सेकंड वाला हिट अभी Q4 में आएगा, जब फरवरी मिड में बाकी का स्टॉक भी क्लियर आउट करेंगे. तो ये लोग पूरा फिला का restructuring they will start now. So the company focused on Fila only. They said other partnerships are good. So on Fila, what they're saying is they will, they are facing some challenges regarding inventory and all, which they've liquidated, and now they are going to set up some manufacturing unit which will have manufacturing in India. So what they've said is, due to BIS related concerns, we have initiated local manufacturing of Fila footwear in India. So, second drop is expected by Feb 25. Stabilization is seen only post H2F26. तो तब वो लोग फिला का न्यू सब EBOs चालू करेंगे. तो वो अभी ये तो मेजरली फिला का था. वन मेजर thing which has happened in Q3 is partnership with New Era. So if you know what New Era does, is New Era is a premium brand in caps, apparels and visors and all. Okay, तो इसके साथ ये लोग ने टाई अप किया है. Three outlets have been opened in Bangalore and in other two cities, उन्होंने नाम नहीं दिया है शायद. वो they have opened. So the main focus of the results was only on Fila's liquidation, due to which they have seen pressure in the financials. Also, they have launched Foot Locker. Now, Foot Locker is a New York-based athletic retailer है. तो वो उन्होंने दिल्ली का Nexus City में they have started. And yeah, so again BIS implementation का issues है, so they have a visibility, to only open 2 or 3 stores in the next 9-10 months. So इसका भी revenue, you wouldn't be seeing the revenue impact in the next 1 year for Metro. So Fila का एक हो गया, New Era का हो गया, and Foot Locker का हो गया. Apart from this, what they said was ideally, एक मिनट, एक लिखा था मैंने, हाँ. So they focused on e-commerce sales, which is up 37% year on year, but still e-commerce sales as a part of their revenues just about 10%. So they have not mentioned anything about increasing e-commerce sales, because we all know that Metro Brands focuses more on store growth rather than e-commerce. Store growth for the quarter was 24 stores offset. It actually should have, it is 24 stores offset by 2 closures. So shoe closures के वजह से impact तो इतना कुछ आया नहीं है. But again I'll say that the financial read through जो है वो, if you see the P&L, तो उसमें positive impact दिखेगा on inventory about 20 crores का. But वो positive impact नहीं है because वो liquidation है, it's not sales. Yeah. I can't comment on revenue impact of liquidation of Fila. उसका numbers नहीं दिया. There is some restructuring going on. Yeah. Fine, good. So I'm also tracking Metro, तो I think थोड़ा बहुत issues है उसमें overall. ये कैसे, काफी मेरा एक कंसर्न था अभी तक कि ना वो इतना एक्सपांड कर रहा है, तुम सब जगह जाओ, हर मॉल में ना उसके हर एक के स्टोर्स लग रहे हैं, तो उसका मार्जिन तुमने क्या बोला हिट हुआ है इस बार या बढ़ गया? मार्जिन तो बढ़ गया है. हाँ, Ideally I think that is because of a store closure. तो थोड़ा सा इनिशियली दिखेगा, एंड वो मार्जिन सर अभी नेक्स्ट 1 ईयर के लिए मार्जिन रहेगा, बिकॉज देन एज यू सी, एज आई सेड ना, कि वो फुट लॉकर और न्यू एरा का दे कांट एक्सपैंड द स्टोर्स. सो FY27 के बाद मार्जिन में हिट आ सकता है. बट या, सो वी कांट फोरकास्ट दैट, बिकॉज वो मार्जिन हिट तभी विल बी ऑफसेट बाय द रेवेन्यू जनरेटेड. वही है कि मेरा भी वही कंसर्न था कि व्हेनेवर आई एम ट्रैकिंग ना, मेट्रो में बाहर जाता हूँ, मेरे पास सब शूज सब उसके मेट्रो के ही है, तो उसके मैं जाके वो अपैरल्स भी लेता हूँ अब टू सी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. बट हाँ, इतने सारे स्टोर खोल के रखे हैं, तो वही कि जैसे तुमने बोला ना, ही इज नॉट फोकसिंग ऑन स्टोर ई कॉमर्स एंड स्टोर पे, तो ये थोड़े टाइम में ना उसका वो चेंज हो जाएगा, कि थोड़े टाइम में आ जाएगा वो भी ई कॉमर्स में. दैट इज मूविंग एट अ ग्रेटर स्पीड, और ये दे नहीं रहा है वहाँ पे.
तो आई कीप ऑन ट्रैकिंग दिस, हर बार मॉल में जाके देखता हूँ। मुझे क्या समझता ना, एक बार मेट्रो है सामने, उसका मोची है, फिर वापस उसका फिट लॉकर है, फिर क्रॉक्स है, फिर उसके फिट फ्लॉप है, सब आजू बाजू होते हैं हर एक स्टोर में, हर एक मॉल में ऐसा है। तो अननेसेसरी एक्सपांशन, तो पता नहीं है ना compete कर पाएंगे कि नहीं। बाटा इज ऑल्सो एक्सपांडिंग एट द सेम टाइम, बाटा का रीच काफी है। तो ये बाटा की स्ट्रेटेजी पे जा रहा है ना कि जस्ट स्टोर्स ओपन करते जाओ। तो आई थिंक वो स्टोर से वी हैव टू सी कि वो प्रॉफिट जो है ना स्क्वायर मीटर, कि एक स्टोर से कितना रेवेन्यू आ रहा है, वो ग्रो हो रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। वो वरना ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा पर स्टोर स्क्वायर बाटा फीट ना, का रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट इज डिक्लाइन दिस क्वार्टर। डिक्लाइन है ना, तो वो वही अगेन प्रॉब्लम है। वापस वही है ना, वो एक तो आपका जो रीजन है और दूसरा वही स्टोर क्लोजर हो गया, तो फिर हाँ, रेवेन्यू पर वो वही डिक्लाइन हो स्टोर गया है। क्लोजर ही बेस्ट है। हाँ, करेक्ट, बट सेगमेंट वाइज इफ यू सी प्रोडक्ट प्राइसिंग सेल्स मिक्स देखोगे ना सर, तो मोस्ट प्रीमियम सेगमेंट में ही दे होल्ड द मैक्सिमम शेयर, लाइक 3,000 रुपीज प्लस पर पेयर का दे उनका एक्चुअली एक्सपेंड हुआ है। FY24 में इट वाज जस्ट 50%, बट 9 मंथ एंडिंग FY25 दैट हैज गॉन अप टू 54% नाउ। तो पता नहीं Q4 में कितना होगा, बट दिस दिस इज एनकरेजिंग। मतलब इफ यू आर सेलिंग हायर प्राइस टिकट ना, हायर टिकट, तो वो बेटर है। मेन वुमेन बेटर में ही है। इनका ज्यादा फोकस है। दे हैव अ वुमेन वही वुमेन करेक्ट, फुटबॉल। वो तो है, प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, वही मेरा वही कंसर्न था कि इतना एक्सपेंशन जरूरी है क्या ओवरऑल। वो बेटर स्पोर्ट सर एक अच्छा है, डाउट है। स्टोर क्लोजर होता है तो बेस्ट है। तो उनका कंफर्टेबल रहता है सोल बेसिकली, लाइक दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर पीपल प्रेफर, हाँ, मेट्रो ब्रांड्स देन बाटा। मतलब द ओनली बाटा, हाँ इशू उसका सोल इतना सॉफ्ट नहीं है, हाँ करेक्ट तो है। ये बट एक वहाँ पे रीजन सर कॉम्पिटिशन भी है। है, रेड एक टेप भी डाउट है था। इधर कॉम्पिटिशन। एक सेकंड ना, रोन एक सेकंड ना, निशा वहाँ पे भी उनका ना क्या है, कंपटीशन है, रेड टेप के भी शूज अच्छे आने लग गए हैं। बाटा ने हश पपीज के ठीक है किया है, रिवैम्प कर रहे हैं वो भी, तो सर सभी कर हश रहे हैं। पपीज में इशू ये आ रहा है क्योंकि डिजाइन इश्यूज हैं। अगर मैं हाँ डिजाइन कंपेयर इश्यूज, करती करेक्ट हूँ, करेक्ट, हाँ डिजाइन इश्यूज करेक्ट, सबसे ज्यादा है। मेट्रो इज वर्किंग ऑन हाँ बोथ ऑफ दीज थिंग्स। उनका जो न्यूएस्ट कंपटीशन मुझे कई बार लगता है, लाइक आई हैव गॉन, अगर मैं थोड़ी कम रेंज में जाऊं, एक मेडिलाइफ करके एक ब्रांड आता है, आई डोंट नो वो किस पर्टिकुलर कंपनी से एसोसिएटेड है, बट दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सोल। उनके डिजाइन भी अच्छे हैं एंड इट्स अफोर्डेबल। Like बराबर। nowadays, doctors are also recommending their brand. Those who can't go for that budget, ओके, around 3K, 2K. हाँ ठीक है, बराबर। मैं मेरा वही कंसर्न था, आई लाइक द प्रोडक्ट्स, आई एम नो डाउट नो कि प्रोडक्ट्स अच्छे ही है, हश पपी से अच्छा ही है। मतलब वही जो डिजाइन पे आ रहा था मैं, ये मेट्रो के डिजाइन अच्छे हैं, हश पपी के 3-4 होते हैं, पर वही प्रॉब्लम था मेरा, स्टोर एक्सपेंशन, अननेसेसरी स्टोर एक्सपेंशन। सर मेट्रो का रेवेन्यू कौन से स्टेट से आ रहा है ज्यादा? पता नहीं है मेरे को, अभिषेक पता है? ऐसे इतना डेटा नहीं है, वो अनिकेत, जोग्राफिकल डेटा नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है वो, स्टोर डेटा ही है सिर्फ। So वो because the सिटी thing is, मेट्रो, वाइज one देखते one हैं। thing which I've observed in Mumbai, तो मेट्रो के इसमें ब्रांड्स लाइक क्रॉक्स हो गया, तो मोजी हो गया, तो मेरे को फुटफॉल्स ही नहीं दिख रहे। लाइक लास्ट 2-3 मंथ्स आई हैव ऑब्जर्व्ड मेनी टाइम्स, तो मेरे को यहाँ पे तो फुटफॉल्स ही नहीं दिख रहे, स्टोर खाली ही नहीं दिख रहा दिखता है है, मेरे को। हाँ नहीं दिखता है, काफी कम। अरे वो 5,000 का क्रॉक्स है, कौन लेगा? मैं लास्ट 3 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ मॉल में जा जाके, बट फुटफॉल्स ही नहीं है वो लोग के स्टोर में। अभी वही, देखना, अभी उस पे सेल लगी हुई है, लास्ट अभी हाँ कुछ क्या, 1-1.5 हफ्ते से किस पे? यहाँ जयपुर तो लगी हुई है सेल। और सेल तो क्रॉक्स जारा पे? में भी है, तो जारा में भी लोग दिखते हैं सेल में, तो तो वो फोर्टी मेजर सिक्सटी उनका वही परसेंट होता है, ऑफ है, जाओ। मेजर सेल पे ही दिखेगा आपको मेट्रो ब्रांड्स में। वही वो, क्योंकि वही प्रॉब्लम है, इतना सर बहुत एक डाउट था एक्सपेंसिव मैं। करके रखा है। हाँ बोलो रोहन, हाँ सर रोहन, ये हाँ जो हाँ बोलो अ, रोहन। ये जो शोरूम्स है मेट्रो बैंड्स के, ये कौन से फ्रेंचाइजी मॉडल पे चल रहा है? फोको मॉडल पे चल रहा है या कौन से? नहीं उनका खुद का है ब्रांड्स, वो लोग किसी में पार्टनरशिप नहीं है उनका किसी के साथ, ओके, खुद मतलब ऑपरेट करता है। फ्रेंचाइजी वगैरह नहीं है लाइक? नहीं नहीं, फ्रेंचाइजी नहीं है, फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं है, खुद के ही है सब स्टोर्स। ओके, मतलब अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होगा कंपेयर टू फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल, यस, दे डोंट बिलीव इन फ्रेंचाइजी मॉडल, ऐसा उनका 800 कहना 900 स्टोर्स में से सिर्फ 6 फ्रेंचाइजी। है। करेंगे लोग थोड़े थोड़े टाइम में ना, व्हेन दिस टॉक्स कम्स डाउन, परफॉर्म नहीं होगा, काफी टाइम से परफॉर्म नहीं किया है ये, एंड वो समझ रहा है कि ना अननेसेसरी एक्सपेंशन कर रहे वो कैपेक्स कितना है समझ में नहीं आ रहा है इसका, लेकिन
I have to see like how much percentage of revenue do मेरे you ख्याल get से with इसका CapEx? कैपेक्स नहीं आएगा इस पे ना, तुमको वो राइट ऑफ यूज एसेट्स में सब आएंगे। इसके बैलेंस शीट पे देखोगे ना, तुमको हाँ पीपी हाँ बढ़ते वक्त नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके लीज एसेट्स होंगे सब के सब। हाँ, तो ये बिल्डिंग ध्यान रखना। थोड़ा सा ही हाँ, बड़ा है, इतना नहीं थोड़ा है सा बड़ा। हाँ, तो बिल्डिंग। हाँ, राइट ऑफ यूज एसेट्स पे ध्यान रखना, लीज पे ध्यान रखना। वो ओके। बढ़ेगा मतलब ये एसेट ले रहा है, क्योंकि सब लीज पे ओके होता है। ओके ओके। Sir, ओके गाइस, if you सो विल स्टॉप। एक सेक, अच्छा ठीक है, बोलो। हाँ, नहीं, just a small thing कि Go Fashion भी अच्छा है सर, business हम्म। is हाँ, doing ये good अपैरल्स तो है, अपैरल्स इज डूइंग गुड, तो वही, इट इज डूइंग गुड, आई एग्री। मैं because खुद भी ले रहा हूँ। Go Fashion, if you see, so it's into only the women's bottom wear. हाँ, So they have 50 plus styles, 120 plus colors. So one stop solution for the women's. वैसा है. They're into the mass segment. So they are doing good. हाँ, तो मेरे मम्मी और मेरे बहन ने तो लिया नहीं है वहां से, बट आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने वहां से लिया, पूछता हूँ उनको मैं। बट हाँ, even सुना है, मैंने सुना है। even I'm planning to take my mom to this Go Colors and buy हाँ, something, so at least quality पता चलेगा. हाँ, बताओ, मेरे को ही बताओ हाँ, क्वालिटी। but they're doing good. बोलो कि margins ठीक है, but मार्जिन कम है काफी, मार्जिन कम है काफी। gross margin is 60. Net the PAT is 10-12%. हाँ, तो कम है उनके हाँ, काफी। हाँ, तो वो एक है वो लोग का. Like V2 retail is also good. हम्म। वो तो है, रिटेल स्पेस इज डूइंग गुड, है ना, दिख ही रहा है, न्यूज़ पे नंबर्स भी आ ही रहा है। Because V2 retails में also, if I say वो लोग अच्छा grow कर रहे हैं, they are into the mass segment again. So they are concentrating on the tier 2, tier 3 cities, and they are also telling कि the spending power of the tier 2 and tier 3 cities is growing now. तो जो Yes, yes. like though the flagship brand है, so if people are not able to go and buy that one, so we are expanding and we are into the mass, not only the mass but the value premium, which you can say. So people are coming and with the families and footfalls are good. So recently, like 2 days back also, Motilal Oswal, two mutual funds have bought the V2 retail. Okay, good observation. So Motilal Oswal, mid cap and small cap, and I guess another one is the small cap or the mid cap soul fund. They have bought the V2 retails over here at this Okay. price, around 1700-1800. Okay, great, good observation. Okay, guys, we'll stop. Actually, I have a meeting in 10 minutes. Okay, thank you, guys. So, Sir, sir, hello, am I audible? yeah. Sir, yesterday I messaged you, sir, regarding the model that I sent. Sir, the model related मेरे ना कुछ 2-3 छोटे-छोटे question है. So should I wait or should I कल ask? पूछा ना, कॉल में इसमें पूछो ना, क्लास में पूछना, तो बाकी लोग को भी समझ जाएगा। सर बैच में तो मैं हूँ नहीं सर, मैं तो मतलब अकेला ही उसको बता रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पास बाकी सारे अच्छा, पुराने वीडियोस है, तो मेरे को खाली ऐसा अच्छा, ऐसा रेफरेंस के लिए चाहिए और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है सर, मॉर्निंग कॉल पे भी पूछ सकता था। ओके। तो एक्चुअली मेरे को 5 मिनट में कॉल है दूसरा, तो ठीक है। मेरे को एक काम करना, तुम्हारे डाउट्स ना वॉइस नोट पे भेजना, मैं बात करूँ। भेजा क्या तुमने? नहीं मेरे नहीं को सर, वॉइस नोट पे वॉइस भेजना, फिर मैं तुमको कॉल करता फिर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, है। ओके। ओके, ओके, ओके गाइस, see you tomorrow in the class. Bye bye, have a nice day. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you very much, sir.